Hello, my dear kids. How are you? Fine? Okay. So, yesterday we saw words with short O sound. Okay. Today I am going to start your language letter exercise that is on page number 48 of your textbook. In language letter, today you are going to learn naming words or nouns. I have already told you what are naming words. Naming words are names of person, place, animal and thing. Okay. So read the dialogues. Notice the highlighted words. She is my friend. So friend is a naming word है ना. Friend is a naming word. Then Myra, she is my friend Myra, मैंने आपको सिखाया है. There's a friend is a common name while Myra is a special name. और जब भी हम special names लिखेंगे तो उसका क्या होगा, उसका first letter would be capital. Yes. We go to school. School. So school is a naming word. है ना? It is the name of a place. So we go to school together. Then here the boy is saying, my pet. Brock eats leash. Brock eats leash. Okay. So here you can see that the word pet is a naming word and also a leash. So leash is a name of a thing. ये जो उसके हाथ में पट्टा है ना, that is leash. Then the boy on a bicycle is saying, whose pup? Pup. So pup is a name of a animal. Is this? It was about to hit my bicycle. So bicycle is a name of a thing. Yes. So the highlighted words are the naming words or nouns. They name persons, places, things or animals. है ना? So naming words are name of person, place, animal and thing. तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, जो पिंक कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स है वो क्या है? दे ऑल आर नेमिंग वर्ड्स. सो यहाँ पर जो ये सारे नेम्स दिए हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी के वाइज यहाँ लिखा हुआ है. लाइक फ्रेंड एंड मायरा, सो दे आर पर्सन, नेम्स ऑफ पर्सन. देन school, so it is place. Then pet and pup, they are names of animals. And leash and bicycle are written in things. Okay, because they are names of things. Okay. So this was your language letter portion. Now moving towards pre-reading portion. It is very important to keep our house and surroundings clean. है ना? Yes, we should always keep our house and surroundings. Surroundings यानी जो भी हमारे आसपास की place है वो. So it is very important to keep those things clean. Look at the pictures. Circle the things that we use to clean the house. So what we have to do in this, that look at the pictures and the things that we use to clean our house, we are supposed to circle those things. Okay. So ये जो एक्टिविटी है वो आपको अपने आप से खुद से करनी है. ठीक है. आप अपने घर पे देखो कि इन फ्रॉम दिस थिंग्स विच ऑल थिंग्स यू यूज टू क्लीन योर हाउस. ओके. तो इसमें से जो भी थिंग्स आप अपने घर में देखती हो कि जिसकी वजह से हमारा जो घर है वो क्लीन आप रखते हो, तो इन सारी चीज़ों पे आपको सर्कल करना है. ओके. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रीडिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर. राइट हियर CW एंड टुडेज डेट. ओके.
So Sunday is the day to clean. Please underline word clean. Clean our house. My parents. Okay, parents. Kids, here please note कि जो इसमें से नेमिंग वर्ड्स है ना, वो आपको पिक्चर के फॉर्म में दिए गए हैं. और इस ब्रैकेट में, इन दिस ब्रैकेट यू कैन सी दैट दोज पिक्चर्स आर नेमिंग वर्ड्स और nouns. Okay, so my parents turn work into fun. So ये इस स्टोरी में हमें क्या कहते हैं कि ये जो हमें स्टोरी बता रहा है दैट जो जब संडे होता है तो संडे इज़ द डे जिस दिन वो अपने पूरे घर की सफाई करते हैं. एंड और जो भी ये बॉय है वो जो ये स्टोरी बता रहा है वो क्या है दैट माई पेरेंट्स टर्न वर्क इनटू फन. और उसके जो पेरेंट्स है, क्योंकि घर साफ करना बिकॉज इट इज़ अ वर्क, सो उसे किस में चेंज कर देते हैं, फन में. वी प्ले म्यूज़िक. अंडरलाइन वर्ड म्यूज़िक. वाइल डूइंग द चोर्स. आप इसे कैसे रीड करोगे, चोर्स. ओके, चोर्स. सो प्लीज़ अंडरलाइन वर्ड चोर्स. ओके, चोर्स यानी कि जो भी हमारा डेली का जो हम वर्क करते हैं, ठीक है, हर रोज़ में हम जो वर्क करते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, चोर्स बोलते हैं. सो जो भी काम, मतलब जो भी वर्क आप करो वो, तो वो क्या कहता है कि जब भी हम वर्क करते हैं उस टाइम पे हम म्यूज़िक यानी कि जो सॉन्ग्स है वो प्ले करते हैं. एंड सिंग वाइल डस्टिंग एंड mopping. Here you can see that the sound of O in mopping is, yes, or it is of short O. Okay, please underline word dusting and mopping. So ये क्या कहता है कि जब भी हम वर्क करते हैं तो हम अपने वर्क के टाइम पे म्यूज़िक प्ले करते हैं और उसके साथ साथ सिंग भी करते हैं जब भी हम डस्टिंग एंड मोपिंग करते हैं. नाउ डस्टिंग मीन्स जो भी हम अपने घर से कचरा निकालें ना, दैट इज़ डस्टिंग. और उसके बाद जो पोछा लगाए तो वो मोपिंग. सो डस्टिंग एंड मोपिंग. बेटा देखो, जब भी हम किसी, ये क्या है, डस्ट, और पीछे जो ING लगे तो उसे आप कैसे रीड करोगे, ING को कैसे रीड करते हैं, इंग. सो डस्टिंग एंड मोपिंग. ओके, वी ऑलवेज वेयर आर ग्लव्स. Here this is gloves. So gloves is a naming word. Okay. और आपको ये gloves यहाँ अंडरलाइन कर दो, ये आपको आपके न्यू वर्ड के जैसे आपको लिखना है. ओके, gloves. Before we start cleaning up. तो फिर वो क्या कहता है कि जब भी हम कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं, कोई भी क्लीनिंग का वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हम क्या पहनते हैं, ग्लव्स. आई हेल्प इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग. प्लीज अंडरलाइन वर्ड वॉशिंग एंड क्लीनिंग. आई हेल्प इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग द कार. ओके, दिस इज पिक्चर ऑफ कार. And car is a naming word of thing. I also help in cleaning the window. This is picture of window. Window is a naming word of a thing. Window. Please underline word window. Okay, this you have to write. When we are done, we rush to the market. Please underline the word market. अब ये जो किड है जो आपको ये स्टोरी बता रहा है वो क्या कह रहा है कि हमें अपनी विंडोज़ को क्लीन करने में भी हेल्प करता हूँ एंड और जब भी हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए, दैट इज़ व्हेन वी आर डन, यानी कि जब भी हाउस क्लीन करना, पूरा हाउस क्लीन हो जाए उसके बाद वी रश, दैट इज़ वी गो टू द मार्केट.
वी बाय ग्रॉसरीज। प्लीज़ अंडरलाइन द वर्ड ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज यानी कि जो कोई भी फूड आइटम्स यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? ग्रॉसरीज। ओके, ग्रॉसरीज एंड अदर हाउसहोल्ड। प्लीज़ अंडरलाइन वर्ड हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड थिंग्स। हाउसहोल्ड यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे हाउस से रिलेटेड हो, यानी कि हाउस के लिए अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर हाउस के लिए कोई चीज़ ली जाए, दैट इज़ हाउस होल्ड। सो वी बाय ग्रॉसरीज एंड अदर हाउस होल्ड थिंग्स। क्या कहा उसने कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ से ग्रॉसरीज यानी कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और जो भी चीज़ें जो हाउस या फिर फैमिली के लिए जो भी ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम वहाँ से खरीदते हैं। माई मदर, here you can see that the picture of mother is given. My mother, so mother is a name of person. Let's me pick my favorite. Please underline the word favorite. फेवरेट यानी कि पसंदीदा, जो हमें बहुत पसंद हो, दैट इज़ फेवरेट। फेवरेट फ्रूट्स है ना, ये क्या है? फ्रूट्स। सो वो क्या कहता है कि मेरी जो मम्मा है वो क्या करती है, मुझे जो भी फ्रूट्स पसंद हो वो मुझे अपने आप से पिक करने देती है। आई हेल्प कैरी द थिंग्स होम। दिस इज़ पिक्चर ऑफ होम। फिर वो किड क्या कहता है कि और जो भी चीज़ें उन्होंने मार्केट से खरीदी है वो उसे उठाने में अपनी पेरेंट्स की हेल्प करता है। माई फादर, फादर इज़ अ नेम ऑफ person, yes, and here the home, so it is place of, sorry, it is a name of place. So my father tells me interesting यानी कि जो भी बहुत अच्छी हो, जिसमें हमें लगे कि वाह ये बहुत ही अच्छा है। ओके, my father tells me interesting. Please underline word interesting stories. Okay, here you can note the sound of O is O, stories. Okay, stories यानी कि कहानियाँ। ऑन द वे, फिर वो क्या कहता है कि उनके पापा जो है रास्ते में उन्हें अच्छी और जिसमें उन्हें दिलचस्पी हो, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, जो उन्हें सुनने में बहुत ही मज़ा आए, वैसे स्टोरीज़ कहते हैं। बाय इवनिंग, प्लीज़ अंडरलाइन वर्ड इवनिंग। इवनिंग दैट इज़ शाम, है ना, जो दोपहर के बाद होती है, दो इवनिंग। इवनिंग ऑल आर वर्क इज़ डन एंड वी go out to play in the park with our pet Rio. तो फिर वो क्या कहता है कि जब शाम को उनका सारा के सारा जो वर्क होता है उन्होंने कंप्लीट कर दिया, यानी कि ख़त्म हो गया, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? पार्क में खेलने के लिए। किड्स प्लीज़ नोट दैट द पार्क इज़ अ नेम ऑफ place. Yes, so park is also a naming word, that is it is a name of place. With our pet, तो it is name of animal. Yes, Rio. अब मुझे ये बताओ कि pet जो है वो कॉमन नेम हो गया and Rio is a special name, है ना, it is a special name that is given to pet. Okay, that is Rio. सो यहाँ देखो कि क्योंकि ये स्पेशल नेम है तो क्या हुआ, ये जो आर है वो कैपिटल है। व्हेन वी आर बैक होम माय मदर कुक्स डिनर। प्लीज़ अंडरलाइन वर्ड डिनर फॉर अस। तो फिर वो क्या कहता है कि जब भी हम घर वापस आ जाते हैं तो जो मेरी मम्मा है वो हमारे लिए डिनर दैट इज़ द मील दैट वी ईट एट नाइट। ओके, तो फिर वो डिनर जो है वो बनाती है। आई हेल्प माई फादर टू सेट द टेबल फॉर डिनर। सो टेबल इज़ अ नेम ऑफ थिंग। तो फिर वो क्या कहता है कि मैं अपने पापा की जो टेबल है वो सेट करने में, यानी कि उस पर टेबल पर कप्स है, ग्लासेस है, प्लेट्स है, वो रखने में उनकी हेल्प करता है।
After dinner, I read story books with my parents. This is books. Okay, the book is a name of thing. Yes. So, Sunday is our cleaning day, but we share the work and it turns into a fun day. तो फिर वो क्या कहता है कि संडे जो है वो उनका कैसा डे है? क्लीनिंग डे है, यानी कि वो अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपना जो वर्क है वो शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ वर्क शेयर करते हैं, तो फिर ये जो डे है वो उन्हें किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फन डे में, यानी कि पूरा दिन उन्हें घर के काम में, अपने हाउस को क्लीन करने में बहुत मज़ा आता है. ओके, यस. सो किड्स प्लीज़ नोट कि हमने जो जो यहाँ पे वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, इन योर 1A नोटबुक. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज. ठीक है, तो चलो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है. आंसर द क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन. What happens in the story? इस स्टोरी में क्या होता है? तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं. A boy and his parents eat pizza. क्या वो लोग पिज़्ज़ा खाने गए थे या फिर वो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं? नो, है ना. A boy and his parents clean their home together. Yes. वो संडे वो लोग उन्होंने क्या किया? अपना जो हाउस है वो क्लीन किया था, है ना. यस, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. सो वी विल पुट टिक. चलो एक लास्ट वन भी देख लेते हैं. अ बॉय एंड हिज पेरेंट्स राइड इन अ कार. नो. देन बी. व्हाट डू दे बाय फ्रॉम द मार्केट? दे बाय टॉयज एंड गेम्स. नो. They buy groceries? Yes. चलो लास्ट वन भी देख लेते हैं. They buy clothes? No. उन्होंने मार्केट में से क्या लिया था? Groceries and household things. So this is correct option. So please put tick. Now see. What does the boy's mother do after they return from the park? तो क्या बॉय की जो ममा है, ठीक है, जो किड हमें इसमें स्टोरी सुना रहा था, वो उनकी ममा क्या करती है पार्क में से वापस आने के बाद? ये में क्वेश्चन दिया गया है. सो शी सिंग्स एंड डांसेस. नो. शी कुक्स डिनर. यस. एंड थर्ड, शी रीड्स अ बुक. नो. शी कुक्स डिनर. Okay, so put a tick over here. Okay. Yes. So this was all about your today's class work, and in homework you have to write these new words in your 1A notebook. Okay.